See students, today we shall start a new topic, conical pendulum. Now what is conical pendulum? All of you know what is the meaning of simple pendulum? See, simple pendulum में एक स्ट्रिंग रहता है और नीचे एक वेट हैंग करते हैं उसको, इसको कहते हैं बॉब. सिंपल पेंडुलम में इसको हम अगर साइड में लेकर छोड़ देते तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. नो कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम में क्या रहता है, ये बॉब जो है ऐसा गोल घूम रहा है सर्कल में, इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम. हाँ, यू कैन सी हियर, ये जो बॉब है, बॉब जो रहता है, बॉब इज मूविंग इन ए सर्कल, बॉब एक सर्कल में मूव कर रहा है, इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम. हाँ, सी स्टूडेंट्स, now we shall derive the formula for period of a conical pendulum. Now what is the meaning of period of a conical pendulum? Period of a conical pendulum means the time taken by the bob for one complete rotation, for one complete revolution. एक complete round के लिए कितना टाइम लगता है उसको कहते हैं period, वो हम अभी फाइंड करने वाले हैं. Now see, this is our conical pendulum. हाँ, now this is our conical pendulum. See, what are the forces acting on our bob? There are only two forces acting on our bob. One is its weight mg acting in vertically downward direction, and tension T. See, this is tension T, which is acting in the direction of the string. This tension T can be divided into two components. One is T naught cos theta and other is T naught sin theta. What is theta? Theta is the semi-vertical angle of the conical pendulum. मीन्स आधा एंगल से, एक्चुअली पूरा एंगल कितना आता है, 2 थीटा आता है. कोनिकल पेंडुलम ऐसा रोटेट हो रहा है, पूरा एंगल आता है 2 थीटा. दिस इज हाफ वर्टिकल एंगल, सो इट इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल. नाउ दिस टी नॉट कॉस थीटा, इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज थीटा मीन्स दिस इज थीटा. व्हेन यू आर स्प्लिटिंग इनटू कॉम्पोनेंट, the side which is adjacent to theta, that you have to take as cos theta, and opposite to theta you have to take it as sin theta. Now T naught cos theta balances mg, and T naught sin theta, it provides the necessary centripetal force. So see, T naught sin theta is equal to mr omega square, which is the centripetal force, and T naught cos theta, it is equal to mg. Divide both these equations, T naught sin theta upon T naught cos theta, what do we get? mr omega square upon mg. T naught will get cancelled, m and m will get cancelled. What is left here? This g we shall bring to left side, it becomes g sin theta. R we shall bring to left side, it becomes upon r cos theta. So g sin theta upon r cos theta is omega square, or changing the sides we can write down as omega square is equal to g sin theta upon r cos theta. But we know that r is L sin theta. How? See, in this triangle CB is r, and this hypotenuse is L. So side opposite to theta becomes sin theta. So from here to here, CB which is equal to R, it is equal to L sin theta. So we have written here R is equal to L sin theta, and we know this formula, omega is equal to 2 pi upon T. So substitute here, in place of omega I am writing 2 pi upon T whole square, it is equal to G upon L cos theta. L sin theta cos theta, this sin theta will get cancelled. So T upon 2 pi whole square, by invertendo, इसको उल्टा कर दिया. L cos theta will go in numerator, G will come in denominator. Therefore, what do we get? T upon 2 pi, taking square root on both the sides, T upon 2 pi is equal to under root L cos theta upon G. Or sending this 2 pi to right side, we get T equal to 2 pi under root L cos theta upon G. This is the formula for period of a conical pendulum. Now what is frequency? Frequency means n, it is sometimes denoted by n, sometimes by f. So n is reciprocal of t. So n is equal to 1 upon t, इसको उल्टा कर देने का. हाँ, अभी एक ही फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद नहीं करने का, दोनों में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करने का, वो है पीरियड का. ऑलवेज पीरियड का फॉर्मूला याद करने का, यानी फ्रीक्वेंसी इज आस्क्ड, इसको उल्टा कर देने का. दिस रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड गिव्स अस द फ्रीक्वेंसी. सो इसको उल्टा कर देते 1 upon 2 pi under root G upon L cos theta.
अगर दोनों फॉर्मूला एक साथ याद किया, इन एग्जामिनेशन यू विल गेट कंफ्यूज, जी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। सो लर्न ओनली वन फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2π√L cos थीटा अपॉन जी। ओके, हाँ, नो वी शैल सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। से दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। एक है, तुमने मेले में देखा रहेगा, एक जायंट व्हील रहता है, हाँ, और जायंट व्हील में बहुत सारे मेले में देखा रहेगा तुमने, हाँ, ये रोटेट होते रहता है। यहाँ पर जो रहता है इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। ये जो जायंट व्हील है ये मोटर से घूमते रहता है और इसका स्पीड जो है कांस्टेंट है। दूसरा टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हमने एक थ्रेड लिया, एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को यहाँ पर एक स्टोन टाई किया हमने। इसको जब हम यहाँ पर वेलोसिटी देंगे, फोर्स देंगे, तो क्या होगा, ये जाएगा ऐसा राउंड चक्कर लगाएगा और ये वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। हाँ, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोन टाई किया और इसको हम गोल घुमा रहे। अगर हमारा स्पीड कम रहेगा, इनिशियल स्पीड अगर कम रहेगा तो पत्थर ऊपर जाएगा और यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। तो एक मिनिमम स्पीड चाहिए इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए। So because this is controlled by gravity, so only one time we are giving the speed here and the stone is completing its circle. So that we are going to derive now. Okay. See, now we shall see vertical circular motion. See here, the particle is performing vertical circular motion under gravity. Okay, under gravity means यहाँ पर जब नीचे आता है स्पीड बढ़ जाता है, ऊपर जाता है तो स्पीड कम हो जाता है। हाँ, सिर्फ पार्टिकल यहाँ पर पॉइंट ए के पास है, वहाँ से सी के पास आ रहा है, फिर बी के पास, फिर डी के पास, फिर अगेन इट इज गोइंग टू पॉइंट ए। नाउ इसमें वो पार्टिकल एक स्ट्रिंग से हमने टाई करके रखा है, पार्टिकल इज टाइड विथ ए स्ट्रिंग। हाँ, और स्ट्रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है, ए के पास एक मिनिमम स्पीड चाहिए, अगर मिनिमम स्पीड नहीं रहे तो ए नीचे गिर जाएगा, एक के पास से पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। अभी हम वही डिराइव करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड डी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक अपर मोस्ट पोजिशन ए। अभी सबसे ऊपर के पोजिशन ए में हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर देखो TA, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and weight of the particle mg is also in downward direction. So both these forces, they together they are providing the centripetal force, that is equal to mva square upon r. So the centripetal force is provided by Ta plus mg. So we are getting mg plus Ta is equal to mva square upon r. Now see, for minimum speed, this Ta, tension in the string, can be minimum equal to 0. When Ta is equal to 0, we get mg plus 0 is equal to mva square upon r. This m will get cancelled on both the sides. So we are getting Va minimum is equal to r, going here we get Rg. So Va is equal to root Rg. So to complete this vertical circle, the minimum speed of the particle at this point A should be equal to how much? Under root Rg. Now see lowermost position B. At lowermost position B, what is happening? This weight mg is acting in downward direction and the tension string TB is acting in upward direction. So here who is providing the centripetal force? TB minus mg. So TB minus mg is equal to mvb square upon r we are getting. Now when the particle is coming from A to B, what is happening? Its potential energy is decreasing and its kinetic energy is increasing. So when coming from A to B, there is vertical displacement of 2r. यहाँ से यहाँ तक, हाँ, what is the distance? हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो distance है, distance is equal to how much? 2r. So decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. Now how much potential energy is decreasing when coming from top to bottom? mg into height. Height is how much? 2r. So mg into 2r is equal to increase in kinetic energy. Increase in kinetic energy means kinetic energy at point B minus kinetic energy at point A.
So half mvb square minus half mva square. So we are getting, now we are cancelling on both the sides. We get 2rg equal to half vb square minus half va square. Minus half va square, or we get 4rg is equal to vb square minus va square. But va minimum is equal to root rg. हाँ, यहाँ पर हमने डिराइव किया था va minimum is root rg. So va square equal to rg. Here if we substitute va square equal to rg, what we get? 4rg equal to vb square minus rg. Minus rg side change किया तो plus rg, 4 plus 1 5rg. So we get vb square is equal to 5rg and vb minimum equal to root 5rg. So minimum velocity at this point B should be equal to how much? Root 5g. Now equation 3 minus equation 1. What is equation 3? Tb minus mg equal to mvb square. What is equation 1? mg plus ta equal to mva square upon r. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट? tb minus mg plus ta equal to mvb square upon r minus mva square upon r. See this minus mg, it will become minus 2mg and tb minus ta. So tb minus ta minus 2mg is equal to, here I am taking m upon r, what we get here? vb square minus va square. From equation 4, now see what is equation 4? vb square minus va square is equal to 4rg. So from this equation 4, what we get? tb minus ta minus 2mg. See, tb minus ta minus 2mg is equal to m upon r. vb square minus va square, instead of this हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4rg. r और r कैंसिल हो गया. This will become 4mg. साइड चेंज किया तो minus 2mg plus 4mg कितना आएगा? 6mg. So tb minus ta equal to 6mg. This is one more important derivation from here to here. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, prove that difference in tension in string at the uppermost point and lowermost point is equal to 6mg. हाँ, तो इससे हम उसको प्रूव कर सकते हैं. हाँ, next tb minus ta we got 6mg. Now horizontal position C and D. In horizontal position C and D we can prove. हाँ, इसमें प्रूफ नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में. So we can prove that TC minus TA is equal to TD minus TA, क्योंकि दोनों सेम हाइट के ऊपर है. It is equal to 3mg. So VC minimum is equal to VD minimum is equal to root 3mg. So पॉइंट C के पास मिनिमम वेलोसिटी आता है रूट 3mg, D के पास रूट 3mg. So चार चीज याद रखने का. टॉप मोस्ट पोजिशन में मिनिमम वेलोसिटी रूट rg, लोअर मोस्ट पोजिशन में रूट 5rg, यहाँ पर रूट 3rd, यहाँ पर rg, यहाँ पर रूट 3rg. हाँ, सो दिस मच यू हैव टू नोट इट डाउन. हाँ, so ये हमारा हो गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सिंपल है. हाँ, so स्टूडेंट्स, नो वी आर गोइंग टू सी स्पीयर ऑफ डेथ. स्पीयर ऑफ डेथ जनरली सर्कस में रहता है. सर्कस में एक केज रहता है और केज के अंदर तुमने देखा रहेगा एक मोटरसाइकिलिस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. हाँ, अभी ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है जब ऊपर टॉप मोस्ट पोजिशन में आता है उसमें नीचे नहीं गिरता है. क्यों नहीं गिरता है? उसका फॉर्मूला, उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए हम अभी फाइंड करने वाले. यहाँ पर वेलोसिटी अगर एक मिनिमम वेलोसिटी से कम हो गया तो नीचे गिर जाएगा. नाउ सी, सपोज ये पॉइंट के ऊपर मोटरसाइकिलिस्ट है. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम? पहला एक फोर्स एक्ट हो रहा है mg, उसका वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दूसरा नॉर्मल रिएक्शन. हाँ, ये जो केज है, केज उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होएगा mv स्क्वायर अपॉन r, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में. नाउ यहाँ पर अभी इक्वेशन क्या आएगा हमको? n प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. हाँ, दिस n and mg they are providing the required centripetal force. So n plus mg is equal to mv स्क्वायर अपॉन r. ये व्हीकल बैलेंस्ड है, व्हीकल अभी गिरेगा नहीं. लेकिन हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए. फॉर मिनिमम वेलोसिटी नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया उस समय हमको मिलेगा मिनिमम वेलोसिटी
हाँ, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू mg, और va इक्वल टू रूट आर जी। सो मोटरसाइकिलिस्ट का मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? रूट आर जी। दिस फॉर्मूला इज सेम एज यू हैव डन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने n के जगह लिया था टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पर हमको लेना है n। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ये देखो, ये जो ब्रिज है, हाँ, इसको कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज कहते हैं। इसको एक्सटेंड किया तो ब्रिज का सेंटर यहाँ पर आएगा, हाँ, सर्कल का। अब यहाँ से गाड़ी जा रही है, गाड़ी का स्पीड अगर ज्यादा रहेगा उस समय क्या होगा? गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो ये जो व्हीकल है इसका ब्रिज से कांटेक्ट टूट जाएगा। जैसा मोस्टली हम लोग स्पीड ब्रेकर के ऊपर देखते हैं, जब हम गाड़ी स्पीड में लेकर जाते हैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर, गाड़ी क्या हो जाता है? जंप हो जाता है। अभी हमको फाइंड करने का है इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, सो दैट इसका कांटेक्ट यहाँ से लूज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोजिशन के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है? mg वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और n नॉर्मल रिएक्शन ब्रिज का है अपवर्ड डायरेक्शन में। हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। नाउ स्पीड इंक्रीज होता है तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्यों? जैसे स्पीड इंक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नाउ फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट n शुड बी इक्वल टू 0। फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट n शुड बी इक्वल टू 0। सो वी गेट mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू mg, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीटली कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये mg प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का उसमें कुछ काम नहीं है। सो वी आर गेटिंग v max इक्वल टू रूट आर जी। यहाँ पर आएगा हमको v max, सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पर भी आ रहा है। सो दिस इज कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज।